السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور گھر پر سب اچھے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اور کیسے چل رہی پڑھائی؟ آج تو الحمدللہ تختی نمبر 22 تختے چلے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، ابھی اور زیادہ محنت کرنی ہے انشاءاللہ۔ جلد سے جلد پڑھ کے قرآن پڑھنی ہے، قرآن پڑھ کر حفظ کرنے کے انشاءاللہ سب ارادہ کرو انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور سب کو شفاء کلی عاجلہ مستفیضہ عطا فرمائے۔ اس وبا سے، اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ تو ہمارا آج تختی نمبر 22 میم ساکن کا قاعدہ ہے انشاءاللہ۔ میم ساکن کا قاعدہ کا سبق آج پڑھیں گے ہم لوگ۔ آپ لوگ ریڈی ہیں؟ جی شروع کریں گے؟ جی الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کا قاعدہ۔ میم ساکن کا قاعدہ: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ پہلے ہم کیا پڑھے تھے کہ نون ساکن کا قاعدہ اور میم ساکن کا قاعدہ ابھی تک نہیں پڑھے ہم، تو آج ہم میم ساکن کا قاعدہ پڑھیں گے کہ میم ساکن کا قاعدہ میں کیا ہوتا ہے، کب گننا ہوگا، کب یہاں پہ لکھا ہوا نا ادغام، اخفاء، اظہار، تو یہ بھی گننا ہوگا اور کہاں گننا نہیں ہوگا انشاءاللہ اس میں بھی بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ میم ساکن کے بعد کیا ہے تو گننا ہوگا، میم ساکن کے بعد کون سا حروف آئے گا تو گننا ہوگا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں آج بات کریں گے، اس کے بارے میں آج ہم سبق پڑھیں گے۔ تو آپ لوگ ریڈی ہیں نا؟ جی الحمدللہ۔ تو تختی نمبر 22 میم ساکن کا قاعدہ: ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کسے کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد میم آئے تو، میم ساکن کے بعد میم آئے تو، دیکھو یہ میم ہے، میم ساکن۔ ساکن کسے بولتے ہیں؟ جزم والے حروف کو ساکن بولتے ہیں۔ ساکن کسے بولتے ہیں؟ جزم والے حروف کو ساکن بولتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میم ہے، میم کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، اسے کیا بولیں گے؟ میم ساکن۔ میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد میم آئے، میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد میم آئے تو، میم ساکن کے بعد میم والا حروف زبر زیر پیش والا حروف آئے تو، یا دو زبر دو زیر دو پیش والا حروف آئے تو، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گننا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اوپر کا جو ہیڈ لائن ہے نا اردو میں لکھا ہوا، وہ میں پڑھا دیتا ہوں، آپ لوگ اسے سمجھ لینا ہے، اسے حفظ یاد رکھنا ہے، حفظ یاد کرنا بھی ہے اور اس کو حفظ یاد رکھنا بھی ہے۔ کبھی بھی اگر اسے حفظ یاد رکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا آگے تختی کیا ہے، کون سا تختی ہے۔ نہیں یاد کریں گے، نہیں یاد رکھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر آپ لوگوں کو دقت ہوگی، پریشانی ہوگی۔ تو وہ جو حفظ ہے اردو میں ہے، میں بولتا ہوں آپ لوگوں سے حفظ یاد کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ میں بولتا ہوں سب؟ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر، میم کو میم سے ملا کر گننا کے ساتھ پڑھیں گے، میم کو میم سے ملا کر گننا کے ساتھ پڑھیں گے، میم کو میم سے ملا کر گننا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟
इदगाम शफवी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इदगाम शफवी। इसे क्या बोलते हैं? इदगाम शफवी। इदगाम शफवी किसे बोलते हैं? मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। उसका एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊंगा। एक एग्जाम्पल बोलता हूं आपको। जैसे लाम ज़बर ला हा मीम पेश हुम। देखो लाम ज़बर ला हा मीम पेश हुम, ये मीम साकिन है ना जी, ये मीम साकिन है। लाम ज़बर ला हा मीम पेश हुम लहुम, मीम अलिफ ज़बर मा, लहुम मा। तो ये देखो मीम साकिन के बाद क्या है? मीम है, तो इसको इसमें मिलाएंगे, मीम साकिन को मीम में मिलाएंगे। क्या बताया? इदगाम शफवी में मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। तो मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो कैसे पढ़ेंगे? गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। कैसे? लाम ज़बर ला हा मीम पेश हुम, हा मीम पेश हुम, हा को मीम में मिलाना है, हा को यहां मिलाना है, इसमें नहीं। हा मीम पेश हुम, हा मीम पेश हुम, क्योंकि तजदीद है। एक बात और याद रखो, ये जज़म को भी पीछे से मिलाकर पढ़ते हैं, तजदीद वाले हुरूफ को भी पीछे से मिलाकर पढ़ते हैं। यस जी। तो जज़म वाला हुरूफ जो है तजदीद वाले हुरूफ से छोटा है मिलाने में। क्या है? कैसे कि जज़म वाला हुरूफ भी है, तजदीद वाला हुरूफ भी है, तो जज़म वाले हुरूफ को छोड़कर तजदीद वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ेंगे हम। जैसे यहां पर है जज़म भी है, तजदीद भी है। अब इसको जज़म वाले हुरूफ को भी पीछे से मिलाना है, तजदीद वाले हुरूफ को भी पीछे से मिलाकर पढ़ना है। तो पहले किसे मिलाएंगे? तो हा को मीम में मिला देंगे, जज़म वाले हुरूफ को साइलेंट कर देंगे, उसे नहीं मिलाएंगे, उसे नहीं पढ़ेंगे। हा को डायरेक्ट यहां मिला देंगे, कहां भी हो। कौन सा भी? ये एग्जांपल बोल रहा हूं आपको कि अगर मीम जज़म और तजदीद भी आए, जज़म और तजदीद है, पहले जज़म है फिर तजदीद है, पहले जज़म है फिर बाद में तजदीद है, तो जज़म वाले हुरूफ को छोड़कर तजदीद वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे हा को ये जज़म है तो ये हा को मीम में, ये वाले मीम में नहीं मिलाएंगे, ये वाले मीम को छोड़ देंगे, ये नेक्स्ट वाले जो मीम है इसमें मिलाकर हा को मीम में मिलाकर पढ़ेंगे। हा मीम पेश हुम लहुम, समझ में आया? लहुम मा, मीम अलिफ ज़बर मा, लहुम मा, गुन्ना करके पढ़ेंगे। इदगाम शफवी के बाद मीम साकिन कायदा, मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। लहुम मा, समझ में आ गया जी। अब इख्फा शफवी, मीम साकिन, इसमें भी वही है, क्योंकि मीम साकिन का कायदा हम पढ़ रहे हैं, तो यही यहां पर भी है। मीम साकिन, मीम साकिन के बाद, मीम साकिन के बाद, समझो, अच्छा से समझना है। मीम साकिन के बाद, ये जज़म वाला हुरूफ को क्या बोलते हैं? साकिन। तो मीम साकिन के बाद बाय, मीम साकिन के बाद बा वाला हुरूफ आए तो, मीम साकिन के बाद, पहले क्या बताया? मीम साकिन के बाद मीम वाला हुरूफ आए तो, मीम साकिन के बाद मीम वाला हुरूफ आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। अब यहां बताता है नीचे इख्फा शफवी में कि मीम साकिन के बाद बा आए तो, मीम साकिन के बाद वाला हुरूफ, नेक्स्ट वाला हुरूफ, मीम साकिन के सामने वाला हुरूफ, आगे वाला हुरूफ, मीम साकिन के बाद वाला हुरूफ, मीम साकिन के बाद बा आए तो, मीम साकिन के बाद बा आए तो मीम को, बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा पढ़ेंगे। इख्फा शफवी कायदा क्या है? मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा पढ़ेंगे, गुन्ना के साथ इख्फा होगा। इख्फा के माने क्या है? इख्फा के माने है गुन्ना, नाक में छुपाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। इख्फा के माने नाक में छुपाना, छुपाना, आवाज को छुपाकर नाक में पढ़ना।
मीम साकिन के बाद बा आए तो मीम को गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इख्फा पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ क्या पढ़ेंगे, इख्फा पढ़ेंगे। ओके, इसको क्या कहते हैं, इख्फाए शफवी। मीम साकिन के बाद बा वाला हुरूफ आए तो उसको इख्फाए शफवी बोलेंगे, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद अगर मीम वाला हुरूफ आता है इसको इदगाम शफवी बोलते हैं, इसमें भी गुन्ना करके पढ़ेंगे। हो गया यहाँ पे, कैसे आपको बताता हूं एग्जाम्पल। हमजा से ई, हमजा नून से इन, नून जबाना इन्ना, रा से रा, इन्ना रा, हमजा नून से इन, नून जबाना इन्ना, रा बा से रब, इन्ना रब बा से बा, इन्ना रब्बा हा, हा मीम पेश हूं। देखो यहां पर क्या है, क्या है ये, बा है, मीम है ना, मीम के ऊपर क्या है, जज़म है। तो अब देखो बताता हूं, हा मीम पेश हुम, इन्ना रब्बहुम। मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद ये क्या है, बा है। मीम साकिन के बाद बा है तो क्या करेंगे, इसको गुन्ना के साथ इख्फा पढ़ेंगे। मीम साकिन दिख रहा है आपको, तो ये मीम साकिन के बाद क्या है, बा है। कायदा में क्या बताया, मीम साकिन के बाद अगर बा आए तो बा आए तो गुन्ना के साथ क्या पढ़ेंगे, इख्फा पढ़ेंगे, इसको इख्फाए शफवी बोलते हैं। मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो इसको गुन्ना के साथ इख्फा पढ़ेंगे। समझ में आ गया, ये मीम साकिन है, ये बा है। इसके बाद क्या है, मीम साकिन के बाद बा आए तो इख्फाए शफवी पढ़ेंगे गुन्ना के साथ। कैसे, हमजा नून इन, नून वना इन्ना, रा बा से रब, इन्ना रब बा से बा, इन्ना रब्बा, हा मीम पेश हूं। यहाँ पर जज़म नहीं, तशदीद नहीं है ना, तो ये हा को इसमें मिलाएंगे, हा मीम पेश हुम, इन्ना रब्बहुम बा से बा, हा मीम पेश हूं, इन्ना रब्बहुम बिहिम। ओके, बाकी नीचे जेर है, बिहिम। ओके, इन्ना रब्बहुम बिहिम, ऐसे गुन्ना करके पढ़ना है। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है ना जी। इज़हार शफवी, मीम साकिन के बाद, अब यहां देखो, मीम साकिन के बाद, मीम साकिन के बाद बा और मीम, बा और मीम। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हरफ आए तो, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हरफ आए तो वहां पर इजहार पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद बा और मीम, मीम साकिन के बाद ये जो दो हुरूफ बताया ना ऊपर में, बा और मीम, इसे ये बा और मीम को छोड़कर, मीम साकिन के बाद बा और मीम को छोड़कर कौन सा भी हुरूफ आने दे, 29 हुरूफ है, उसमें दो हुरूफ छोड़ देना, 29 में दो हुरूफ छोड़ देना, बा और मीम को छोड़ के कितने भी हुरूफ आने दे, 27 हुरूफ जो है उसमें कौन सा भी हुरूफ आएगा तो वहां पर गुन्ना नहीं होगा, वहां पर इजहार होगा। समझाता हूं, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हुरूफ आने दे, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा, बा और मीम के अलावा कोई और दूसरा हुरूफ आएगा, ये दो हुरूफ को छोड़कर कोई दूसरा हुरूफ आएगा तो वहां पर गुन्ना नहीं होगा, न वहां पर क्या होगा, इजहार पढ़ेंगे। उसको कैसे पढ़ेंगे वो आपको बताऊंगा कि मीम साकिन के बाद बा और मीम, अच्छी तरह से समझ लेना है, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा अगर मीम साकिन के बाद बा आता है
इख्फा शफवी होगा। मीम साकिन के बाद अगर मीम आता है तो इदगाम शफवी होगा। ये दो हुरूफ को छोड़कर कोई दूसरा हुरूफ आए तो इख्फा शफवी इजहार शफवी होगा। सॉरी, मीम साकिन के बाद ये दो हुरूफ को छोड़कर कोई दूसरा हुरूफ आए तो कौन सा कायदा होगा? इजहार शफवी। कौन सा कायदा होगा? इजहार शफवी। बा और मीम के अलावा कोई हुरूफ आए तो उसको जाहिर करके पढ़ना चाहिए, उसको जाहिर करके पढ़ेंगे, उसको जाहिर करके पढ़ेंगे। उर्दू में पढ़ाता हूं, देखो। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हुरूफ बिलखुसूस वाव या फा। वाव या फा क्यों बताया है? ये एग्जाम्पल के लिए वाव या फा बताया है, वाव या फा बताया है, ये एग्जाम्पल के लिए बताया है। बस इसको ये नहीं समझना कि वाव और फा है तो गुण इजहार होगा, नहीं। ये एग्जाम्पल के लिए दो हुरूफ दिया है। कोई हुरूफ बा और मीम को छोड़कर कोई दूसरा हुरूफ आए तो क्या होगा? इजहार शफवी होगा, इजहार शफवी होगा। समझ में आया? वाव और फा को छोड़कर, सॉरी, बा और मीम को छोड़कर कोई सा हुरूफ आन दे, इजहार शफवी होगा। ये एग्जाम्पल के लिए दिया है, उर्दू में जो दिया है वहां पर वो एग्जाम्पल के लिए दिया है बस। वाव और फा बिलखुसूस वाव और फा है तो मीम को क्या करेंगे? जाहिर करके पढ़ेंगे। जाहिर करने के माना क्या है? छुपाना नहीं, गुन्ना नहीं करना। बिना गुन्ना करके, गुन्ना कर नहीं सका जल्दी पढ़ेंगे, गुन्ना कर नहीं सका जल्दी पढ़ेंगे, वहां पर गुन्ना नहीं होगा। एग्जाम्पल बोलता हूं, देखो कैसे। हा मीम पेश हुम। मीम के ऊपर क्या है? जज़म है, साकिन है, मीम साकिन। हा मीम पेश हुम। फायाजे फी, हा ज़बर हा, हुम फीहा। फायाजे फी, फायाजे फी, हुम फीहा ज़बर हा, हुम फीहा। मीम साकिन के बाद क्या है? फा है। तो क्या बताए? मीम साकिन के बाद कोई भी हुरूफ आए तो, अगर बा है तो इख्फा शफवी, मीम है तो इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद अगर बा है तो इख्फा शफवी, मीम साकिन के बाद अगर मीम है तो इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद ये दो हुरूफ को छोड़कर कोई सा भी हुरूफ आएंगे उसको क्या पढ़ेंगे? इजहार शफवी बोलेंगे उसको। जैसे एग्जांपल, हा मीम पेश हुम, फायाजे फी, हुम फी, हा ज़बर हा, हुम फीहा। गुन्ना कर नहीं सका जल्दी पढ़ेंगे। क्लियर से समझ में आ गए यहां तक? जी। ऊपर से अगर समझ में नहीं आया है तो सही से समझ लेना, वीडियो को पीछे करके देखना है। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोगों को वीडियो को बैक करके अच्छा से फिर समझना है, क्योंकि अगर ये समझ में आया, कायदा समझ में आ गया तो आप लोग आसानी से पढ़ना आ जाएगा। कायदा समझ में नहीं आया तो फिर पढ़ना जरा नहीं, बहुत मुश्किल होता है। तो कायदा पहले समझना, तो कौन सा कायदा है, कौन सा इख्फा है, इदगाम है, इजहार है, इख्फा शफवी है, वो सब समझना है। वो समझ में आ गया तो पढ़ना आसानी होता है, इजी है। क्लियर? जी। नीचे पढ़ेंगे। नीचे क्या है? इदगाम शफवी का पढ़ेंगे एग्जाम्पल में। नीचे इदगाम शफवी का पढ़ेंगे, इदगाम शफवी, इदगाम शफवी। हमजा से ई, लाम या ज़बर लई, इलई, काफ मीम पेश कुम, इलई। लाम या ज़बर लई, या के ऊपर जज़म है। हमजा से ई, लाम या ज़बर लई, इलई, काफ मीम पेश कुम, मीम के ऊपर जज़म, इलई कुम। मुरसलू, इलई कुम मुरसलू। हमजा से ई, लाम या ज़बर लई, इलई, काफ मीम पेश कुम। देखो इदगाम शफवी है ना, तो मीम साकिन के बाद क्या है? मीम है। मीम साकिन के बाद अगर मीम है तो इदगाम शफवी होगा। उसको मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। काफ को मीम में मिलाएंगे, क्योंकि ये तजदीद भी है, जज़म भी है।
तशदीद और जज़म है तो जज़म को छोड़कर तशदीद वाले हुरूफ से मिलाएंगे। तो काफ को कहाँ मिलाएंगे? मीम में। काफ में पेश कुम, इलैकुम, मीम वापस मुर, इलैकुम मुरसलून, संजर सलाम वापस नून सबरना, इलैकुम मुरसलूना। अगर यहाँ पर आयत कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? साकिन, इलैकुम मुरसलून। क्लियर जी। लाम सबर ला, हामिम पेश हुम, लहुम, मीम अलिफ सरमा, लहुम्मा। देखो यहाँ जज़म है, मीम साकिन है तो हा को यहाँ मिलाएंगे, यहाँ पे गुन्ना होगा, इदगाम शफवी, लहुम्मा यशा, या सबर या, शीन अलिफ ज़बर शा, ऊपर मद, लहुम्मा यशा, हमज़ा व पेश ओ, नून ज़बरना, आगे आयत ऊन, लहुम्मा यशाऊन, आगे आयत लहुम्मा यशाऊन। देखो यहाँ पर मद भी हो रहा है, यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल हो रहा है, हमज़ा हुर्फ़े मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में। तो हम पढ़ रहे कायदा मीम साकिन का, मीम साकिन के बाद मीम आए तो इदगाम शफवी होगा, इसको मीम से मीम को मीम से मिलाकर पढ़ेंगे। अब हा को मीम में मिलाएंगे, हा में पेश हुम, मीम ज़बर, मीम अलिफ ज़मा, लहुम मा यशाऊन, या ज़बर या, शीन अलिफ ज़बर शा, ऊपर मद, लहुम मा यशाऊन, हमज़ा व पेश ऊन, नून साकिन, ऊन, लहुम मा यशाऊन। जी, नीचे पढ़ेंगे। फायज़े फी, कापेश को, फी को, लाम वापेश दो, फी कुलू, बाज़िल बिहिम, बाज़िल बी, हामिम से हिम, ये हा है, छोटी हा, इधर बा है, ये बीच में हा है, याद रखना है, ये हा है। ये हा की पहचान बताया हुआ तख्ती नंबर 2 में, बाज़िल बी, हामिम से हिम, बिहिम, लव फी कुलूबिहिम मरज़ुन, आगे मरज़, फी कापेश को, फी को, लाम वापेश लो, फी कुलो, बाज़िल बी, हामिम से हिम। तो देखो ये हा है, समझ में आया? ये आगे क्या है? मीम साकिन है, तो ये हा को ये मीम में मिलाएंगे क्योंकि ये तशदीद है आगे। यहाँ पे इदगाम शफवी है क्योंकि मीम साकिन के बाद क्या आ रहा है? मीम, तो इदगाम शफवी होगा। बाज़िल बी, हामिम से हिम, बिहिम, मीम ज़बर मा, रा ज़बर मरा, फी कुलूबिहिम मरा, ज़ाद दो पे ज़ुन, फी कुलूबिहिम मरज़ुन। क्लियर? ये हा है, याद रखना, हामिम पेश हुम, फादर फा, हामिम पेश हुम, फहुम मुअ, फहुम मुअरिज़ून, लाज़िरी ज़ावा पे ज़ू, फहुम मुअरिज़ून, फहुम मुअरिज़ून। देखो यहाँ भी ये मीम साकिन है, उसके बाद मीम है, मीम साकिन के बाद मीम है तो क्या होगा? इदगाम शफवी। इसे अच्छा से याद कर लेना है। अब जो इख्फाए शफवी और इजहार शफवी है उसको नीचे दूसरे वीडियो में हम बताएंगे आपको। इसे याद कर लेना है पहले, इसे याद करके अच्छा से समझ लेना है, ठीक है जी। समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे करके अच्छा से देखना है,
ٹھیک ہے. السلام علیکم. صحیح سے پڑھنا ہے, نماز پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے سب کے لیے. السلام علیکم.